Hello students and welcome to today's class. Today we'll be discussing about the Mendel's laws of inheritance. Previously we have already studied, हम लोग पहले ही study कर चुके हैं कि what was the history of Mendel and the experiments that he conducted, how he conducted that experiments, and how he came to the result, which was not recognized during his own lifetime, but that came to be recognized after his death, and he was awarded the title Father of Genetics. So this we have already covered up. Now let's come straight to the laws which were formulated by Gregor Johann Mendel. Okay, so let's start, students. So सबसे पहला लॉ जो मेंडल ने दिया था उसका नाम है लॉ ऑफ पेयर्ड कैरेक्टर्स. द फर्स्ट लॉ दैट ही पुट फॉरवर्ड इज law of paired factors. Now remember, this law is not in use in modern times now. बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इसको एक लॉ की तरह कंसिडर नहीं करते हैं, but as because he had already mentioned it, I put it here in this video. So what does the law state? The law states that factors are responsible for transmission of characters. They are present in the form of pairs. So here you'll find he mentioned that there are factors. There are certain components called as factors. Okay. So he suggested that there are components called as factors which are responsible for transmission of characters. मतलब इससे पहले जो एक आइडिया था, there was an initial idea that the characters are transmitted automatically from one generation to another. But Mendel said no, they are not automatically transmitted. They are transmitted through a component called as the factors. Now remember students, ये जो वर्ड हम लोग अभी फैक्टर यूज कर रहे हैं ये मेंडेलियन वर्ड है, बट लेटर ऑन इसका मीनिंग चेंज हुआ एंड दैट वाज एक्चुअली द जीन दैट ही वाज रेफरिंग टू. ओके, तो मॉडर्न जेनेटिक्स में हम उसको जीन की तरह जानते हैं, लेकिन मेंडल जीन वर्ड यूज नहीं किए थे, उन्होंने यूज किया था वर्ड फैक्टर्स, एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स. ना ये जो पेयर फॉर्म में है इसको हम लोग जानते हैं एज एलील्स. ओके, so this is it. Mendel referred to the genes as factors, and he explained that for every biological trait there are two unit factors in pair that control the same trait. This pair is now called as alleles. तो यहाँ पे जो पेयर का बात कर रहे हैं वो बोले कि फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं और वही कंट्रोल करते हैं किसी ना किसी कैरेक्टर को. So here you find the pair that he is referring to is actually alleles. तो एलील का डेफिनेशन हम लोग पहले ही देख चुके हैं. These are a pair of genes of contrasting characters which control the same character, same trait you can say. ठीक है, and they are present in the same locus in a homologous pair of chromosomes, right? तो वो जो एलील्स का डेफिनेशन है वो एक लॉ की तरह मेंडल ने प्रेजेंट किया था. तो यही वो रीजन है जिसके चलते कुछ साइंटिस्ट उसको एक लॉ नहीं मानते, बिकॉज दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ ए जीन, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एलील्स, so they do not consider it as law. ठीक है, अब ये देखो, आप जब भी कोई कैरेक्टर देखते हो तो वो हमेशा पेयर में रहता है, राइट? कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये हमेशा पेयर में रहेंगे, और जब ये लोग गैमेट फॉर्म करेंगे फिर फर्टिलाइज होंगे, दे विल बिकम हाइब्रिड्स लाइक कैपिटल ए स्मॉल ए, तो हमेशा ये पेयर में ही रहेंगे. दैट इज व्हाट मेंडल सजेस्टेड. ओके, but we will not go into more details of this law because this is not accepted in modern world as a law, most of the scientists. Okay, तो जो पहला लॉ जो मेंडल प्रेजेंट किए थे, which is now applicable, which we are studying, is the law of dominance. ठीक है, so the law that he put forward is called as law of dominance. ये मेंडल का दूसरा लॉ था, लेकिन as because पहला लॉ हम लोग अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो इसको पहला लॉ भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं. You can consider law of dominance to be the first law. Okay, now what does law of dominance state? It states that when two alleles of an inherited pair is heterozygous, then the allele that is expressed is dominant, whereas the allele that is not expressed is recessive. तो यहाँ मेंडल ने बोला कि जब भी कोई एलील्स ट्रांसमिट होते हैं, इनहेरिट होते हैं पेयर में इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है, then the allele that is expressed is dominant. जो एलील एक्सप्रेस हो पा रहा है हेट्रोजाइगस कंडीशन में उसको डोमिनेंट बोला जाएगा, और जो हिडन रह जा रहा है, जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग रेसेसिव. Now let's look at this diagram and we'll understand what he actually meant by it.
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम पे एक बार नजर डालिए। तो देखिए उसने क्या किया था, मेंडल ने क्या किया था कि उसने कैपिटल टी पेरेंट को लेके क्रॉस किया था स्मॉल टी के साथ, राइट? दिस वाज द क्रॉस ही मेड। नाउ इन द नेक्स्ट जनरेशन ही फाउंड कि कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप हैविंग प्लांट्स वेयर देयर, so he found plants with capital T and small t genotypes. Okay, but what was their phenotype? The phenotype was tall. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि Mendel saw that in the F1 generation all the plants were tall, but they had a genotype which was capital T and small t. तो यहाँ पे ये जो पेयर है, हेट्रोजाइगस पेयर है, इसमें से सिर्फ एक ही एक्सप्रेस हो पाता है, बिकॉज द कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स द टॉलनेस ऑफ द प्लांट। ये जो जीन होता है ये टॉलनेस ऑफ द प्लांट के लिए होता है, जबकि ये स्मॉल टी होता है ड्वार्फनेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों है, टॉलनेस का भी जीन है और ड्वार्फनेस का भी जीन है, लेकिन एक्सप्रेस कौन हो रहा है? टॉल एक्सप्रेस हो रहा है। टॉल एक्सप्रेस हो रहा है मतलब कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा है, whereas small t is remaining hidden, it is not being expressed, ये हिडन रह जा रहा है और एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। तो दैट इज व्हाट मेंडल सेड। Mendel said that the character which is expressed in heterozygous condition is dominant, and the character which remains hidden and is not able to express itself in a heterozygous condition is called as recessive. तो ये हो गया पहला लॉ, मेंडल का पहला लॉ, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, या फिर इसको आप एक दूसरे तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस स्पेसिफिक law. You can say that when two pure parents are crossed, the character which is expressed in the F1 generation is dominant and the character which remains hidden is recessive. ठीक है, तो हम लोग दो पेरेंट्स लिए थे, दो प्योर पेरेंट्स लिए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ व्हेन बोथ दिस पेरेंट्स दे वर क्रॉस्ड, the character which was expressed in F1 generation is dominant. All the offsprings were tall. That means tall is dominant, dwarf is recessive. तो ये हो गया आपका पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेगर जोहन मेंडल, कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाउ इसके रिलेटेड दो क्रॉस होते हैं, उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। लेट्स गो इनटू दैट। सी, whenever Mendel conducted his experiments, there were different combinations of characters that he chose. वो क्या करते थे, F1 जनरेशन को कभी कभी अपने प्रीवियस जनरेशन के साथ क्रॉस कर लेते थे, कभी कभी रेसेसिव पेरेंट के साथ कर लेते थे, कभी कभी डोमिनेंट पेरेंट के साथ कर लेते थे। सो ही मेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉस पैटर्न्स। सो दैट इज व्हाट विल स्टडी हियर। तो दो क्रॉस हम लोग स्टडी करेंगे, एक होता है बैक क्रॉस, दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस। ओके, नाउ व्हाट आर दिस? पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। बैक क्रॉस इज ए क्रॉसिंग ऑफ ए हाइब्रिड विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट्स और इंडिविजुअल जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। तो पेरेंट्स ले लिए हम लोग, दो प्योर पेरेंट्स ले लिए, उनको हाइब्रिडाइज किए, तो हमें F1 जनरेशन मिला, F1 हाइब्रिड मिला। तो ये जो F1 हाइब्रिड जनरेशन का इंडिविजुअल है, उसको अगर किसी भी पेरेंट के साथ विद एनी ऑफ द पेरेंट्स इफ यू मेक ए क्रॉस, दैट इज कॉल्ड एज ए बैक क्रॉस। बैक मतलब पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जब क्रॉस हुआ उसको अगर आप रिवर्ट कर दे, मतलब ऑफस्प्रिंग को अगर फिर से पेरेंट के साथ क्रॉस कर ले। ओके, लेट्स सी दिस डायग्राम। Now here you see pure plant tall was taken capital T and pure plant dwarf was taken small t। जब क्रॉस कर दिया गया F1 जनरेशन में क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, प्लीज ऑब्जर्व हियर। सो हियर यू विल फाइंड कि इन द F1 जनरेशन द हाइब्रिड वाज कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ इफ दिस इज क्रॉस्ड विद एनी ऑफ द पेरेंट, सपोज हम लोग ये कैपिटल टी पेरेंट ले लेते हैं। सो इफ यू क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन विद एनी ऑफ द पेरेंट्स, यहाँ पे हम लोग कैपिटल टी लिए हुए हैं। सो ये हो गया आपका पेरेंट कैपिटल टी, और ये हो गया आपका F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी। सो व्हेन यू मेक ए क्रॉस लाइक दिस, इट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस, मतलब ऑफस्प्रिंग जनरेशन विद एनी ऑफ द पेरेंट्स, या फिर एनी इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर जीनोटाइप टू द पेरेंट्स। मतलब ये आप अगर पेरेंट नहीं लेके यहाँ पे कोई भी कैपिटल टी प्लांट या फिर कोई भी स्मॉल टी प्लांट लेते हैं तब भी चलेगा। ठीक है, मतलब वो जेनेटिकली पेरेंट के साथ सिमिलर होना चाहिए। So F1 hybrid with any of the parent is called as back cross. Now similarly आप लोग देखेंगे टेस्ट क्रॉस, लेकिन टेस्ट क्रॉस थोड़ा अलग है। What is test cross? Test cross is a cross between a hybrid and its homozygous recessive parent. It is used to identify unknown genotypes. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट दिए हैं, it is used to identify unknown genotypes। ठीक है,
तो कौन सा हम लोग अननोन जीनोटाइप्स आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं? टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? सिमिलर टू बैक क्रॉस, लेकिन द हाइब्रिड शुड बी क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट, ओके, नॉट एनी ऑफ द पेरेंट्स। हम लोग बैक क्रॉस में बोले थे एनी ऑफ द पेरेंट्स, लेकिन जब आप लोग टेस्ट क्रॉस बोल रहे हो, इट इज गोइंग टू बी homozygous recessive parent. It has to be crossed with the homozygous recessive parent. Okay, let's see a diagram to understand this as well. Here, as you can see in this diagram, ये जो diagram आपके screen पे display हो रहा है, capital R is red color flower, small r is white color flower. Capital R is dominant, small r is recessive. Now what we are doing, we are crossing this. हम लोग क्या कर रहे हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया आपका F1 जनरेशन, जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी था। अब F1 जनरेशन को हम लोग रेसेसिव पेरेंट के साथ कर रहे हैं। रेसेसिव पेरेंट कौन? स्मॉल आर स्मॉल आर। अगर यहाँ पे आप लोग देखें, कैपिटल टी स्मॉल टी अगर क्रॉस किया जाता स्मॉल टी के साथ, वो हो जाता टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे किया गया है कैपिटल आर स्मॉल आर, द F1 जनरेशन हाइब्रिड क्रॉस्ड विथ स्मॉल आर which is the recessive parent. ये recessive parent है, ठीक है। तो जब इस टाइप का क्रॉस आप लोग करेंगे तो आपको मिलेगा 50% ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, 50% ऑफ रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर आप यही चीज F1 जनरेशन का अगर आप लोग किसी अननोन जीनोटाइप के साथ करते हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, कैपिटल आर भी टॉल होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर भी सॉरी कैपिटल आर रेड होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर भी रेड होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज। ना आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेड फ्लावर देख के इसका जीनोटाइप क्या है, इसका जीनोटाइप ये है कि ये है, कैसे पता चलेगा? वही पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अननोन जीनोटाइप। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको अगर उसको टेस्ट क्रॉस कर लेंगे, इफ द जीनोटाइप इज कैपिटल आर, देन यू विल फाइंड ऑल द प्लांट्स विल बी रेड, ठीक है, ऑल द फ्लावर्स विल बी रेड। लेकिन अगर जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर हुआ, then 50% will be red and 50% will be white. तो इसीलिए टेस्ट क्रॉस इंपोर्टेंट होता है। बैक क्रॉस में आपको ये चीज पता नहीं चलेगा, यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई, ठीक है। लेकिन अगर आप टेस्ट क्रॉस करते हो तो जो हेट्रोजाइगस या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। So that is the significance of test cross. Test cross is the cross between a hybrid or the F1 generation with its homozygous recessive parent, okay, and that is used to identify the unknown genotype, right? तो ये हो गया आपका पहला लॉ, which is law of dominance. But remember, ये जो laws होते हैं इनके कुछ exceptions भी होते हैं. There are certain conditions when these laws will not be applicable, okay? तो हम लोग उसको genetic interactions बोलते हैं, okay? So in the next class we'll go into the exceptions of first law of Mendel, law of dominance. Okay, there are two such exceptions. One is incomplete dominance, the other is codominance. Okay, that we will discuss in the next class. Okay, thank you everyone.